خدا دی سونا گا جد کرے گا کلام کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام گائیے سارے میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام آواز آئے میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام کہ اوتے اپنے بندے آنا پاک لوکاں نال تمام. خدا کے خادم مبشر انجیل برادر فاقد خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے. میری گزارش ہے. ہاللویا ہاللویا. تب خدا اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. پاک روح تو مدد کر رہنمائی کر یسوع نام میں یسوع نام میں یسوع مسیح کے تیرے نام کلام پاک کو سمجھنے والی عقل دنائی حکمت چاہتا ہوں پاک خدا یسوع نام میں بحال کر دے. او اسرائیل کے خدا تجھ پر سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. ہاللویا ہاللویا. تیرے کلام پاک کو میں گل خدا تاکہ تیرے کلام پاک کو سن سکوں, تیری میٹھی آواز کو سن سکوں پاک خداوندہ. تیرا کلام پاک خداوندہ مردہ ہڈیوں میں طاقت ڈال دیتا ہے پاک خداوندہ. تیرا کلام آج جتنے دلوں میں ٹھہرے پاک خداوندہ ان دلوں پر تیرا راج ہو پاک خداوندہ, کیونکہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے پاک خداوندہ. پاک خداوندہ آج کے کلام پاک کو صرف سننے والے نہ پاک بلکہ تیرے کلام پاک پر عمل کرنے والے بھی بنے پاک خداوندہ. تو ہمیں بحال کر, بیدار کر پاک خداوندہ. آج کا کلام ہم سبوں کی بحالی, بیداری اور ترقی کے لیے ہاللویا. یسوع نام میں تجھ اور بڑی برکت دے. تیرا خادم نہیں بلکہ تو بولے پاک خداوندہ. ہم تیری میٹھی آواز کو سننے والے پاک خداوندہ. تجھ اور بڑی برکت دے. ہر طرح کی ابلیسی تسیلیں ناکام ہو جائیں پاک خداوندہ. کوئی کسی قسم کی لعنت ابلیس کی چال نہ چلنے پائے پاک خداوندہ. جب تیرا بندہ بولے پاک خداوندہ, ہم تیری میٹھی آواز کو سنے اور پاک خداوندہ ڈھیروں ساری برکات پائیں پاک خداوندہ. تیرے اسی عظیم یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام سے آمین آمین. اس وقت ہمیں دیکھ رہے اس ویڈیو کو واچ کریں, سن لیجیے گا. یسوع مسیح جب آپ گڈ فرائیڈے کی عبادت کرتے ہیں, یسوع مسیح نے صلیبی کلمات کتنے بولے ہیں؟ سارے بولے. کتنے بولے ہیں؟ 7. یسوع مسیح نے ایک کلمے میں کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ صلیب پر سے یسوع کو اتارا گیا, صلیب پر سے یسوع کو اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یسوع مسیح کو قبر میں رکھا. کہاں پہ رکھا جی؟ قبر میں رکھا. تو آج اب 3 دن کے بعد یہ عید منا رہے ہیں, لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ وہ قبر کے باہر ایک بڑا پتھر تھا. چپ کرو. قبر کے باہر ایک بڑا پتھر تھا اور پتھر کے ساتھ رومی سپاہیوں کی رومی حکومت کا پہرا تھا. آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کوئی پتھر, کوئی رومی سپاہی یسوع کو قید نہیں کر سکتا تھا. سارے بولے ہاللویا ہاللویا. بولے ہاللویا. ہاللویا. آئیے پہلے سیشن میں ہم سیکھیں گے. میں جلدی سے کوشش کروں گا آپ کے تک یہ بات پہنچاؤں. سو میں چاہتا ہوں کہ میری مسز آئیں گی اور پہلا پطرس کا خط, پہلا خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, اسی میں اس نے جا کر ان آپ قیدی روحوں میں ایسا کیجئے کہ 18ویں ایسے شروع کر دیں. اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا. اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی, جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر پڑھ دے. جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی.
आमीन आमीन शुक्रिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन। सारे बोले आमीन आमीन। अजीज बहनों भाइयों, पतरस के खत में लिखा है यस्सु अल मसीह उन रूमी सिपाहियों ने, उस रूमी हुकूमत ने यस्सु को एक कम 40 कोड़े मारे। वो कोड़े ऐसे थे कि उसके अंदर हड्डी शीशा था। जब वो पड़ता था तो उसी वक्त जिस्म के लोथड़े, जिस्म का हिस्सा वो मैं समझ तो निकल आता था। अब मुझे ये बताएं, जिस एक कोड़े में क्या है जी? शीशा है और हड्डी है। एक बंदे को 39 पड़े तो क्या वो जिंदा रह सकता है? नहीं, बोले नहीं। बोलो। खत में लिखा है कि यस्सु अल मसीह ने क्या किया जी? नारास्तों के लिए, गुनहगारों के लिए जान दी। बोले हालेलुया हालेलुया। कलामे मुकद्दस में लिखा जी, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बाइस दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। यस्सु का सलीब पर जान देने का मकसद यह था कि आप खुदा के पास जाएं। इस दुनिया में रहते हुए बड़े दुख हैं। गरीब लादर को यहाँ पे कोई रोटी नहीं देता था। आज खुदा के लोग यहाँ पे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में क्या, हर जगह पे मैं समझता हूं परेशानियों में मुब्तला है। मैं समझता हूं कि आज हम देखें तो बहुत सारे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उस वक्त भी, यीशु के वक्त भी लोग परेशानियों का कार्य कर रहे थे, सामना। बाइबल में लिखे कि उसने गुनाहगारों के लिए जान दी ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन यीशु मारा नहीं था। बोले हालेलुया हालेलुया। आसमान और जमीन टल जाएगा, मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। अब सुनिए, सीखिए। वो 3 दिन का पीरियड, वो 3 दिन का लम्हा, वो 3 दिन का सेशन कहां पे था? बाइबल में लिखा है कि वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक माँ, एक बाप, अगर उसका बच्चा गुनाह में है, अगर उसका बच्चा बदी की राह पर है, अगर उसका बच्चा एक बुरे कामों में, यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। शागिर्द अफसुर्दा बैठे थे। आज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आज अफसुर्दगी का वक्त नहीं, आज खुशी का वक्त है। बोले हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह उनके दरमियान कहते हैं, तुम्हारी सलामती हो। तुम्हारी क्या हो जी? सलामती हो। वो कहते हैं शायद ये रूह है, वो शायद ख्याल में थे कि शायद कोई मौजूदा हुआ है, शायद कोई और आ चुका है, शायद हमारा ख्याल है। लेकिन यहाँ पे अब हम सबूत देखेंगे जी। पढ़े जी आगे। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं, किसी रूह को देखते हैं। अब सबूत यीशु मसीह देने वाले हैं जी। आगे पढ़िए। उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? पीछे चुप कर जा। और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे दिल में शक क्यों पैदा हुआ है? तुम्हारे दिल में क्या है? शक क्यों पैदा? आज भी बहुत सारे लोगों के दिल में शक है कि यीशु जिंदा ही नहीं हुआ। हाँ जी। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो के बाइबल में लिखा है, यीशु कहते हैं मेरे हाथ देखो, 6-6 इंच के कील लगे थे। अगर इंटरनेट पे देखें तो बहुत सारी पिक्चर्स हैं, होल बना है तो उसमें से लाइट भी निकलती है। यीशु ने कहा, एक तो शागिर्द को कहा था, वो यकीन ही नहीं करता था। यीशु ने कहा, तू मेरी पसली में हाथ डाल के देख। हालेलुया हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु जिंदा नहीं हुआ है, उसका हम शक्ल सलीपा चढ़ा है, लेकिन यीशु जिंदा है। यहाँ पे सबूत देखिएगा। हाँ जी, आगे पढ़ते जाइए जी। मेरे हाथ और मेरे पांव देखो के मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो। मुझे छू कर, ये देखें, यीशु ने कहा
मर गया था और देख अब्दुल्ला बाज जिंदा हो। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। यस्सु अल मसीह, यस्सु अल मसीह। मैं बताना चाहता हूं कि यूहन्ना को क्या कहते हैं, देख मैं मर गया था, इन्होंने लग लग करो, देखो मैं मर गया था लेकिन अब से अब तक अब्दुल्ला बाज जिंदा रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह दुनियावी एतबार से मर गए थे, लेकिन उस टाइम में, उस वक्त में जाके यीशु ने कैदी रूहों में जाकर क्या की थी, मुनादी। अजीज बहनों भाइयों, मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती कि इन 3 दिनों के दौरान वो खामोश नहीं थे। इन 3 दिनों में खामोश नहीं, बल्कि एक अहम मिशन पर थे, एक अहम मिशन पर। यीशु खुदा का इकलौता बेटा था। थैंक यू ब्रदर। खुदा का एक क्या था जी, इकलौता बेटा था। वो खुदा का बेटा पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है। आमीन। आज लोग दुआ करने का पता नहीं किससे दुआ करें, कौन हमारी शिफायत करेगा। अगर आपका कोई अजीज सुने हॉस्पिटल में हो, कोई वर्कर हो, कोई काम करता हो, खुदा न करे आपके खानदान में से कोई बीमार हो जाए, तो आप हॉस्पिटल में जाएं, आपको क्या होता है कि मेरा बंदा उठे है, मेरा भाई वहां पे है, मेरी बहना वहां पे है, तो वो हमारे लिए क्या करेंगी, सिफारिश करेंगी, डॉक्टर से बात करेंगे, हमें मेडिसिन मिल जाएगी। आज मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए एक बड़ी जबरदस्त बात है। हालेलुया। ताली बजाएं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो बाप के दाहिनी तरफ पर बैठा है। मैंने आपको तीसरे सेशन में ये बताया कि यीशु आसमान पर उठाए गए, बाप के दाहिनी तरफ पर बैठे हैं। अब वो वहां पे क्या कर रहे हैं, जिस दोबारा पढ़िएगा जी, 7वें बाप की 25 आयत इब्रानी का खत। इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं, सुनिए, जो आज ईमानदार हैं, जो यीशु को कबूल करते हैं, आग में भी फेंके जाएं, मुसीबत में भी फेंके जाएं, यीशु चुप करके नहीं बैठे, यीशु वहां से काम करते हैं। हालेलुया। पढ़िएगा जी आगे क्या लिखा है। वो उन्हें पूरी निजात दे सकता है। नजात का मतलब है मखलसी, रहाई, छुटकारा। सदरक मिसक अब्दुन्नजू आग की भट्टी में फेंके गए, वो खुदा के मानने वाले थे। और बाइबल में लिखे खुदा ने अपने मैसेंजर को, खुदा ने अपने मैं समझता हूं सर्वेंट को भेजा, फरिश्ते को भेजा। आज जब आप दुआ करते हैं, आपकी मदद के लिए आपका और मेरा यीशु शिफायत करता है। जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। वो बाप से दरख्वास्त करता है, उनकी शिफायत के लिए हमेशा क्या जी, जिंदा है। बोले हालेलुया। अजीज बहनों भाइयों, आज ये 3 बातें थी कि यीशु मसीह 3 दिन तक, कितने दिन तक, 3 दिन तक कब्र में नहीं थे। 3 दिन कब्र में नहीं थे। वो 3 दिन कैदी रूहों में जाके मना दी। और हमने दूसरा पॉइंट ये सीखा कि वो सबूत है हमारे पास। फरिश्ता बहनों को बताता है कि ये पत्थर देखें, ये जगह देखें, ये खाली है, ये रुमाल है। फिर मैंने आपको एक और सबूत बताया यीशु मसीह के बारे में जिंदा होने का। यीशु शागिर्दों के दरमियान आके खड़े हो गए, यकीन नहीं करते, रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होती। यीशु ने कहा आपके पास क्या बना हुआ है, क्या खाने को है, बोलो बुनी हुई मछली। यीशु ने खा के दिखाया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते, यीशु ने सबूत दिया। और तीसरा सेशन हमने ये सीखा है, अगर यीशु जिंदा है तो वो कहाँ पे है, यीशु मसीह बाप के दाहिने तरफ बैठे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मैंने ये भी बताया कि वो मुकद्दसीन के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, जब आप बड़े बीमार है, परेशानी में, बुरे हालात से गुजर रहे हैं, तो जब यीशु से मिन्नत करते तो बाप फिर अपने खादमों को, अपने फरिश्तों को भेजता है आपकी मदद के लिए। आइए शुक्रगुजारी की दुआ करें। के खालिक और मालिक यहोवा पाक, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ पाक खुदावंदा। मेरा दिल नहायत खुश है कि पाक खुदावंदा तेरे बंदे ने आज मुकाशफा के भेद हम पर खोले पाक खुदावंदा। तेरे मीठी आवाज को सुना और बहुत सारी बरकत पाई पाक खुदावंद। इसी तरह ये कलाम हमारी जिंदगी में ठहर जाए पाक खुदावंदा। हम इस बात पर यकीन रखें कि तू जिंदा है पाक खुदावंदा। हम इस बात पर ईमान रखें कि तू हर जगह मौजूद है।
पाक खुदावंद तुझी और बड़ी बरकत दे खुदावंद, ये नासरी तेरे खादम का इस घर में आना बायस बरकत ठहरे पाक खुदावंदा, तुझी और बड़ी बरकत दे। जितनी जानों ने आज तेरे कलाम पाक को सुना है, सबकी जिंदगी को तब्दील करने वाला तू खुदा है। यहोवा पाक बहाल कर, बेदार कर खुदावंद, ये नासरी इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तूने जो मदद और रहनुमाई किया है, हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावंदा। और ख़ास तौर पर आज इस खूबसूरत दिन के लिए, खूबसूरत सुबह के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदावंदा। जितने लोग तेरे सामने झुके हैं, सबके लिए दुआ करते हैं पाक खुदावंदा, सबके लिए बरकत चाहते हैं पाक खुदावंद। छू और बड़ी बरकत दे यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम से, आमीन।